एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा जा रहा फैसला। सीजीआई समेत 4 जजों का फैसला, 3 जजों का फैसला अलग। 4-3 के बहुमत से फैसला आएगा। एएमयू अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला पढ़ना जज ने शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि 3 जजों का तर्क जजमेंट एक है और एक जज का जस्टिस का जजमेंट अलग। तो वहीं 4-3 के बहुमत से फैसला आना बताया जा रहा है। फैसला पढ़ा जा रहा है, बड़े फैसले की घड़ी इंतजार है। अब विस्तृत तौर पर फैसला कब सामने आता है, जिसके बाद वो फैसला आगे दर्शकों तक भी पहुंचाया जा सके, इंतजार उसी का है। एमयू अधिनियम के तहत साल 1951 का भी इसमें जिक्र है। दोनों संशोधनों को कानूनी चुनौती भी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में कहा था और माना जा सकता है अल्पसंख्यक संस्थान एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2005 में संशोधनों को खारिज कर दिया था और 2016 में केंद्र सरकार की कोर्ट में डली। अल्पसंख्यक दर्जा धर्मनिरपेक्ष और 2019 में 3 जजों की बेंच ने इसको लेकर बात रखी थी और 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। अब 7 जजों की बेंच फैसला सुना रही है। The right under Article 31 is guaranteed to minorities as defined upon the commencement of the Constitution. A different right-bearing group cannot be identified for institutions established before the adoption of the Constitution. To determine who established the Constitution, the courts must consider the genesis of the educational institution. For this analysis, the courts must trace the origin of the idea for the establishment of the institution. The court must identify who was the brain behind the establishment of the educational institution. Letters, correspondence with other members of the community, or with government or state officials, and resolutions issued could be valid proof for establishing ideation or the impetus to found and establish. The proof of ideation must point towards one member of the minority or a group from the community. The second indicia is the purpose for which the educational institution was established. Though it is not necessary that the educational institution must have been established only for the benefit of a religious or linguistic minority community, it must predominantly be for its benefit. It is not necessary that education must be provided in the language spoken by the minority or in the religion of the minority. The indicia could be proved by a reference to private communications or speeches about the necessity of establishing an educational institution for the community and a recognition of the educational difficulties faced by that community. The third test is tracing the steps taken towards the implementation of the idea. Information on who contributed the funds for its creation, who was responsible for obtaining the land, and whether the land was donated by a member of the minority community or purchased from funds raised by the minority community for this purpose, or donated by a person from some other community, specifically for the establishment of a minority educational institution, are elements that must be considered. Similar questions must be asked of its assets. The next question is whether the administrative structure of the educational institution is an indicia for the establishment of a minority educational institution. We have already held above that an educational institution is a minority educational institution if it is established by a religious or linguistic minority. We have clarified that it is not necessary to prove that administration vests with the minority to prove that it is a minority educational institution, because the very purpose of Article 31 is to grant special rights on administration as a consequence of establishment. To do otherwise would amount to converting the consequence to a precondition. The right to administer is guaranteed to minority educational institutions to enable them to possess sufficient autonomy to model the educational institution according to the educational values that the community wishes to emphasize. It is not necessary that the purpose can only be implemented if persons belonging to the community helm the administrative affairs. This is so particularly because a minority institution may wish to emphasize secular education. The test to be adopted by the court is whether the administrative setup of the educational institution affirms the minority character of the institution. If the administrative structure of the educational institution does not reflect its minority character,
or when it does not elucidate that the educational institution was established to protect and promote the interests of the minority, it may, however, be reasonably inferred that the purpose was not to establish an educational institution for the benefit of the minority community. We may specifically deal with a scenario of an educational institution established before the commencement of the Constitution. The test of administration should be evaluated in presenti, that is, on the date of the commencement of the Constitution. An institution to be a minority institution must satisfy the criteria of being administered as a minority institution on the date of the commencement of the Constitution and being a minority institution on the date of formation. Even if an educational institution was established by the minority for the purpose of the community, we must assess the impact of any subsequent events that alter the character of the institution before the commencement of the Constitution. The court may, on a holistic reading of the statutory provisions relating to the administrative setup of the educational institution, deduce if the minority character of the purpose of establishment was relinquished upon incorporation. The question is whether the regulatory measures wrest the administrative control from the founders of the institution. This is a question of fact which must be determined on the facts of each case. The court must make that determination upon a comprehensive analysis of the administrative framework, which includes a host of factors such as the representation of the interests of the community in the administrative setup. The above indicia must be proved through the submission of cogent material. Reliance must be placed on primary sources such as office documents, letters and resolutions, or memorandums issued to implement the resolution. Secondary sources must be only used to corroborate the primary sources. The onus to prove that the educational institution was established by a minority is on the claimants. The view taken in Aziz Basha that an educational institution is not established by a minority if it derives its legal character through a statute is overruled. The question of whether AMU is a minority educational institution must be decided based on the principles laid down in this judgment. The papers of this batch of cases shall be placed before the regular bench for deciding whether AMU is a minority educational institution and for the adjudication of the appeal from the decision of the Allahabad High Court in Malay Shukla's case after receiving instructions from the Chief Justice on the administrative side. तो देखिए 7 जजों की बेंच और 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। दिल्ली से सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। गौरव, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जा रहा फैसला और बड़ी बात कि आज सीजेआई का अंतिम कार्य दिवस भी। अब बताइएगा फैसले के दौरान क्या कुछ कहा गया, क्योंकि 4-3 के बहुमत की बात है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि फैसला सुनाया जा रहा है और जिसमें इन बातों को डिस्कस किया जा रहा है कि क्या एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिड है और नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जजों ने जो राय रखी है उनको सीजेआई फिलहाल पढ़कर सुना रहे हैं और सभी जो संबंधित क्वेश्चन है, संविधान से जुड़े सभी क्वेश्चन है, उनका उनके व्यूज के अकॉर्डिंग वो अभी रिप्लाई दे रहे हैं। क्योंकि इस मैटर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू का दर्जा नहीं लिया था, तो उस मैटर को भी यहाँ पर राइज करते हुए उसको भी डिस्कस किया जा रहा है। विस्तारित फैसला है जो कि कुछ ही समय में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जी, अब गौरव ये भी जानकारी दीजिएगा कि 2 बातें भी अहम कही गई कि धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं वो स्थापित तो कर सकती हैं धार्मिक समुदाय संस्था को, लेकिन प्रशासक नहीं हो सकती। इसका तर्क का क्या महत्व है गौरव? कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है सभी को संविधान के अनुसार धार्मिक संस्थाओं को पंजीकृत कराना और ये सब कुछ करना, किंतु स्पेसिफिक किसी विशेष जाति और वर्ग के लिए हम इसको मतलब माइनॉरिटी के लिए या स्पेसिफिक किसी जाति के लिए हम उसको सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं, उसको स्पेशल जगह नहीं दे सकते, उसको स्पेशल राइट्स नहीं दे सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है क्योंकि जो कोई भी एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसमें सभी का एक राइट होता है, कॉमन राइट होता है। तो उस राइट को उन्होंने डिस्कस करते हुए बताया गया कि स्पेसिफिक एक किसी व्यक्ति के लिए हम इसको, किसी कम्युनिटी के लिए हम इसको रिजर्व नहीं रख सकते हैं और इस पर अभी क्लेरिफिकेशन जारी है। गौरव, आपको रोकना चाहेंगे इसी पर, बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अल्पसंख्यक का दर्जा जिसको लेकर के 7 जजों की बेंच में सुनवाई हुई,
फैसला जो बरकरार रखा गया है अल्पसंख्यक दर्जे का। सहयोगी गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, बड़ा फैसला जिस पर निगाहें यूनिवर्सिटी के शिक्षक कर्मचारियों की थी, साथ ही साथ पूर्व विद्यार्थियों की भी रही है। फैसला आ गया है, क्या मायने फैसले के गौरव? जी बिल्कुल, 59 ईयर्स से लगभग ये आजादी के बाद से ये लड़ाई चल रही थी एमईओ को लेकर, और इसमें कई बार जो है मतलब मैटर जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच रहा, और इसमें सरकारों का भी हस्तक्षेप रहा, क्योंकि जो इससे वर्तमान सरकार से पहले की सरकार थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये एएमयू का सपोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। वहीं जो वर्तमान सरकार है उन्होंने अपना एक लिखित में एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें उन्होंने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया था। तो यहाँ पॉलिटिकली रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पूर्व की सरकारें रही, उनकी बातों में वजन रहा और उनकी बातों को सही यहाँ पर रखा गया है। दूसरी बात यह है कि जो अल्पसंख्यक का मुद्दा था, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र लड़ रहे थे, लोग लड़ रहे थे, स्थानीय लोगों का कहना था कि जो हमारे लिए इसको बनाया गया है और हमारे लिए स्पेशल राइट्स है, तो अब वो उनके बरकरार रहेंगे। यानी कि अब यहाँ पर जो आरक्षण की पॉलिसी है अन्य जातियों के लिए, वो यहाँ पर रेगुलेट नहीं हो पाएगी। जो उनको स्पेशल स्टेटस अलग इंस्टीट्यूशंस में मिलते थे, वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यही कहा था कि वर्तमान सरकार ने कहा था कि जो स्पेशल आरक्षण है, वो जो अन्य जातियों का आरक्षण है, वो एएमयू में नहीं मिल पाता, तो इसलिए इस कैटेगरी को खत्म करना चाहिए। तो अब वो कैटेगरी खत्म नहीं हो, वो कैटेगरी बरकरार रहेगी, यानी कि वहां पर किसी अन्य जाति को स्पेसिफिक आरक्षण नहीं मिल पाएगा, जो कि एक तरह से उनके लिए तो दुखद पहलू है। वहीं जो माइनॉरिटी के दर्जे के समर्थन में थे, उनके लिए राहत की बात है कि अब ये उनका ही राइट रहेगा, उसे एजुकेशनल संस्थान में पढ़ने का और सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त करने का, ये उनको ही राइट मिलेगा और उन पर ही उनका ही रिजर्व रहेगा। जी गौरव, क्योंकि 1 फरवरी 2024 को तमाम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और 8 नवंबर का दिन तय किया गया था फैसला सुनाने के लिए। अब फैसला आया है, लेकिन जब तमाम दलीलें सुनी गई थी तो क्या कुछ दलीलों में कहा गया था? गौरव जी, मैं बताना चाहूंगा कि 10-11 पिटीशन इस मामले में फाइल की गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ने इस बात को बड़े तरीके से रखा था कि हमारा जो माइनॉरिटी का स्टेटस है उसको बरकरार करा जाए, क्योंकि हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, और वो सारी बातें उन्होंने रखी थी। वहीं सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने इसका अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दे सकते, माइनॉरिटी का दर्जा इसको देना ठीक नहीं है, क्योंकि और भी जितने भी इंस्टीट्यूशन है सेंटर के, वो स्टेट के, उनमें किसी में भी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई राइट नहीं है। तो ये सारी बातें रखी गई थी, तो इसका काफी अपोज भी हुआ था। फिर इसके फेवर में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है वो भी दिखाया गया, वो भी दिया गया, और उसमें भी कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसको नहीं माना है एएमयू का दर्जा। इससे पहले जो मतलब इस मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा था, वो भी यही रहा था कि उन्होंने इसको नहीं माना था। तो यहाँ पर ये सारी दलीलें रखी गई, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी बातें हुई, 8 दिन तक लगभग लगातार सुनवाई हुई है, और इस मैटर में ये सारी बातें रखी गई कि जो संवैधानिक अधिकार है समुदाय विशेषता, उसको बरकरार रखना चाहिए। रिलीजियस राइट्स की यहाँ पर बात हुई है। तो अब ये मैटर इस तरीके से सुनवाई के बाद डिस्पोज हो गया है, यानी कि एक बहुत बड़ी लड़ाई एक खत्म हो गई है, और ये जो अल्पसंख्यक दर्जे की मांग के साथ जो लोग आए थे, उनको बहुत बड़ी रिलीफ है। जी गौरव, क्योंकि 7 जजों की बेंच का फैसला, ऐसे में मत किस तरह रहा? क्योंकि बताया गया कि 4-3 के बहुमत से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा गया। जी बिल्कुल, इसमें 4 जो थे उनमें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी रहे, आज उनका लास्ट वर्किंग डे है, तो वो भी इसके फेवर में रहे, और 3 जो इसके अपोज में रहे, तो बहुमत से ये फैसला सिद्ध हुआ है। और ये 7 जजों की बेंच थी, और इसका डिसीजन अभी विस्तृत रूप से अभी अपलोड होने पर ही जानकारी दी जा पाएगी कि कौन ने इसमें अपना फेवर दिया और कौन से कितने ज्यादा नहीं दिया। जी लेकिन गौरव, अगर इस पूरे मामले को समझना चाहें, क्योंकि लंबे अरसे से इस पर चर्चा भी होती आई है, इसको लेकर के केंद्र की ओर से भी आपने कहा कि अपनी बात रखी गई थी, तो ऐसे में पूरी टाइमलाइन अगर इस अल्पसंख्यक संस्थान को मिले दर्जे जो पर फैसला आया है, अगर इसकी पूरी टाइमलाइन समझे, अब तक क्या कुछ घटा है और आज जो बड़ा फैसला आया है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद से इसका पहले कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो अल्पसंख्यक दर्जा था वो छीन लिया गया था।
उसके बाद इससे सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, वहां पर भी इसमें अल्पसंख्यक के दर्जे को नहीं माना गया था। उसके बाद ये मैटर वहाँ पर हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो वहां पर सरकार ने अमेंडमेंट जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जो वर्तमान सरकार से पहले थी, गौरव आपको रोकना चाहेंगे? चलिए, तो लगातार कोशिश यही कि इसको लेकर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बहुत शुक्रिया गौरव आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।